Hello students, today we are going to start with the lecture 6 of Is Matter Around Us Pure. In lecture 5th, we have studied about the concentration terms, solubility and the saturated and unsaturated term related to solute and solvent. Now today in the class, we will study about physical and chemical change. Now, there are some changes during which no new substance are formed, and other hand there are some changes in which during the reaction new substances are formed. So, on the basis of whether new substances are formed or not, we can classify all the changes into two groups, that is physical and chemical change. Okay? So we will now discuss physical and chemical change in detail one by one. Okay? So as you can see in this picture, cutting of wood is been an example of physical change, whereas the same wood when it starts burning, it is taken as a chemical change, because while cutting of tree, no new substance is formed. Wood remains the same. But while burning the tree, जब आप ट्री को जलाते हो तो क्या होता है, वुड बचता है? नो, इट रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एशेस एंड कोल. Okay, so total new product is formed. So that type of change are known as chemical change. So let us see physical change first. Physical change, those changes in which no new substance are formed are called physical change. मतलब जब कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, उसे हम फिजिकल चेंज बोलेंगे. एज यू कैन सी एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ आइस. फ्रीजिंग ऑफ आइस यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप फिजिकल चेंज का. वैसे ही हम बहुत सारे और डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे फिजिकल चेंज के. ओके, so let us start. What is a physical change? We have started. Now, in a physical change, the substance involved do not change their identity. जो सब्सटेंस फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, दे कैन बी इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये पॉइंट्स आपको डिस्कस करवाऊंगी. सो जस्ट पे अटेंशन इन द पॉइंट्स. They can be easily returned to their original form by their physical process. Next, the change in physical state, that is size and shape of a substance, are called physical changes. मतलब जो change होता है in their physical state, that is size and shape of a substance, are called physical changes. So let us see it using an examples. For example, boiling of water is a physical change to form steam. ठीक है. Now, when we heat water, when water is heated, it boils to form steam. We have studied this in the first chapter itself. Now, though steam and water look different, water looks like liquid and steam looks like gaseous, but they both are made up of what? They both are made up of water molecules. Their identity is same. So, thus, no chemical substance is formed during the boiling of water. So, the boiling of water to form a steam is a physical change. ठीक है, क्योंकि when you cool the steam, it again condensify into what? Condensation processes take place and it is again condensated into what? It is condensated into liquid. ठीक है, so the condensation of steam to water is also a physical change. Cleared? Next, making fruits from raw fruit. Or you can say fruit salad, making fruit salads from raw fruits. ठीक है, I am taking raw fruits. ठीक है, फ्रूट सलाद आपका कस्टर्ड फॉर्म में भी होता है, तो वो केमिकल होता है क्योंकि वहाँ पे फ्रूट्स क्या होते हैं, आप पका लेते हो. ठीक है, वेरेज यहाँ पे रॉ है, तो यहाँ पे उसका चेंज हो रहा है कोई भी स्टेज? नो, इट इज़ द सेम सब्सटेंस. ना स्टार्टिंग में भी आपने फ्रूट रॉ लिया था, आपने उसको जब कट किया तो भी क्या है, वो रॉ है तो वो फ्रूट ही, राइट? सो देयर इज नो चेंज. So this type of change is also known as physical change. Next, stretching of rubber band. जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो वो अपना शेप तो चेंज कर रहा है, बट अगेन जब उसको छोड़ रहे हो, फ्री छोड़ रहे हो, when you are applying force, then it is changing force and pressure, it is changing its state. But when you leave it, it again comes back to what? Its original position. That is reversible, right? So that is also known as physical change, because रबर क्या अपनी कोई केमिकल कोई प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है? क्या रबर दूसरा कुछ फॉर्म कर रहा है? नो, इट इज सेम. सो देयर इज नो चेंज. सो दैट इज व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज. आयरन फिलिंग सैंड्स एंड सैंड का मिक्सचर.
ठीक है, सोल्यूशन मिक्सचर, तो ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप इसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो. मैग्नेट ले लोगे, हम आगे के टॉपिक्स पे मतलब सेपरेशन टेक्निक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल आएगा कि अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था ना, द फिजिकल चेंज कैन बी रिटर्न, दे कैन बी इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजिशन बाय सम फिजिकल प्रोसेस. तो अगर ये फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करूँगी मैं इसमें, दैट इज मैग्नेट ले लूँगी, उसको सेपरेट कर दूँगी, तो वापस मुझे आयरन फीलिंग्स अलग मिल जाएगी, सॉल्ट अलग मिल जाएगा और सैंड अलग मिल जाएगा. सो अगेन दिस प्रोसेस इज नोन एज फिजिकल चेंज. ठीक है, ये केमिकल चेंज नहीं, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, वापस उसको टोटल अलग कर सकते हैं. ठीक है, रोटेटिंग ऑफ फैन, बेस्ट एग्जांपल आपके घर पे सीलिंग में फैन रोटेट हो रहा है, जब वो स्विच ऑफ है, ठीक है, तो वो स्टिल कंडीशन में व्हेन यू ऑन द स्विच अप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है. तो क्या वो स्विच ऑफ करने पे भी रोटेट करता रहता है? नहीं, इट अगेन बाय फिजिकल प्रोसेस, मतलब आप वहाँ पे बटन ऑन या ऑफ कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अगेन रिटर्निंग इट टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. सो अगेन दैट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज. ओके, मेकिंग ऑफ अ सोल्यूशन, मेकिंग ऑफ अ सोल्यूशन मीन्स सॉल्ट सोल्यूशन बनाना, तो वो कैसे एक टाइप का फिजिकल प्रोसेस है. जैसे वी टेक वाटर इन अ डिश, ठीक है, एंड डिसॉल्व सम कॉमन सॉल्ट इन इट. ठीक है, द सॉल्ट डिसअपियर्स इन वाटर्स एंड फॉर्म्ड अ सॉल्ट सोल्यूशन, कंप्लीटली ये डिसअपियर हो जाएगा इसमें एंड फॉर्म्ड अ सॉल्ट एंड या फिर शुगर सोल्यूशन. सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. सो अ चेंज हैज टेकन प्लेस इन मेकिंग अ सॉल्ट सोल्यूशन. सो लेट अस नाउ हीट, अभी इसी जो सोल्यूशन मैंने बनाया उसको मैं हीट करती हूँ. So when you heat it continuously, what happens? Water evaporate हो जाएगा and white powder वापस left down हो जाएगा. That is your common salt. ठीक है. So in some common salt which had dissolved in the water earlier, this means no Q chemical substances formed. क्योंकि मैंने तो salt ही dissolve किया था ना पानी में, तो मुझे वापस उसमें से salt मिल रहा है ना. अगर मुझे सॉल्ट नहीं मिलता, अगर मैं वो वाटर को इवापोरेट कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिलता, तो वो केमिकल चेंज है. बट जब मैंने उसमें से सॉल्ट और वाटर का जो सोल्यूशन बनाया था, उसमें से वाटर को इवापोरेट कर दिया, तो मुझे वापस सॉल्ट मिल गया ना, जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था. तो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस. ओके, फ्रीजिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल प्रोसेस बिकॉज वाटर इज कोल्ड, एंड मैंने आपको बताया कि आप वाटर को जब हीट कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, तो वो इवापोरेट हो जा रहा है. बट जब आप या फिर वाटर को जब फ्रीज कर रहे हो, तो वो आइस बन जा रहा है, और उसी वाटर को वापस आइस को वापस मेल्ट कर रहे हो, तो वापस क्या बन रहा है, लिक्विड, मतलब सेम चेंज हो रहा है. सो द फ्रीजिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रोसेस. सो आई होप व्हाट इज अ फिजिकल प्रोसेस इज क्लियर टू यू. सो नाउ लेट अस सी. हाँ, फिजिकल प्रोसेस में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. ब्रेकिंग ऑफ पीस ऑफ अ चॉक, कटिंग और टीयरिंग अ पीस ऑफ अ पेपर, टीयरिंग ऑफ क्लॉथ, मेल्टिंग ऑफ वैक्स. नाउ मेक श्योर आपके इस क्लास में टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, पूछा गया है आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज लास्ट पार्ट में. तो वहाँ पे पूछा है हीटिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, और यू कैन से बर्निंग ऑफ कैंडल. नाउ दे आर saying burning of candle. Now candle has wax also and thread also, so that consists of both the process, that is physical also and chemical also. Because when you start melting the wax, that wax can be recollected and form the candle again, but the thread inside that candle, it forms the ash बनाना start करता है, तो वो वापस आप ash से वापस thread बना सकते हो? No. So burning of candle is both physical and chemical process. But when I am asking you melting of wax is a physical process. Okay. So next is chemical change. Now what is chemical change? As you can see, here is the example of chemical change. As I said, burning of the thread. Okay. Now what is a chemical change? Those changes in which new substances are formed are called chemical change. मतलब वो substance जिसमें new substance बन रहा है, ठीक है, एक टोटल न्यू प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज. इन अ केमिकल चेंज सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड चेंज देयर आइडेंटिटी, वेयरएज फिजिकल चेंज में वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता. ठीक है, द न्यू सब्सटेंस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म. मोस्टली द न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है रिएक्शन के बाद, वो वापस आपके ओरिजिनल सब्सटेंस में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, मतलब आप उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वेयर एज फिजिकल प्रोसेस आर समवॉट रिवर्सिबल. ओके, सो एग्जाम्पल सेट इज सी रस्टिंग ऑफ आयरन. Rusting of iron is a physical change. Why?
सॉरी अ केमिकल चेंज. वाई? बिकॉज आयरन गेट्स डिग्रेडेड. आयरन क्या करता है, आपके मॉइस्चर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है और रस्ट करना स्टार्ट करता है. आयरन के ग्रिल्स होंगे आपके घर पे या फिर आयरन के तो मटेरियल्स होंगे, वो इनिशियली तो शाइन करते हैं, बट आफ्टर सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, दे स्टार्टेड रस्टिंग. रस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जंग लगना स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे उसमें से एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, राइट. आयरन था, Fe था, एटमोसफेयर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना रहा है. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. अब रस्ट बना रहा है तो वो टोटल न्यू कंपाउंड बना रहा है, राइट. दे हैव द डिफरेंट देयर आइडेंटिटीज ऑल्सो. ओके, कलर के भी चेंजेस है उनमें, ठीक है. और वापस आप उसको आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि रस्ट वाला पार्ट तो खराब हो गया. समझ में आया? सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज. राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, क्या उसको वापस रॉ फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं. जब फ्रूट कच्चे होते हैं उसमें से केमिकल रिलीज होता है और वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू अ राइप्ड फ्रूट्स. सो राइपिंग ऑफ फ्रूट्स इज अगेन अ केमिकल चेंज. योर फेवरेट फूड्स मोस्ट ऑफ ऑल. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. एज यू कैन सी इट इज सीड्स सोक किया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ. क्या ये रिवर्स उल्टा होता है ये प्रोसेस? नहीं ना. इट ग्रोज ऑन कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है. सो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज टोटल न्यू थिंग यू आर सीइंग. पहले छोटा था तब फ्रूट्स दे रहा था, नहीं, जब बढ़ रहा है तो थोड़ा और बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और बड़े होके फ्रूट्स दे रहा है, आपको शेड दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो टोटल न्यू प्रोसेस शो कर रहा है. सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक. बेस्ट एग्जाम्पल इंसेंस स्टिक तो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में भी आया था एक्टिविटी में, यहाँ पे भी एग्जाम्पल में आ गया. सो इंसेंस स्टिक, इंसेंस अगरबत्ती, आप जलाते हैं उसको तो एशेस में फॉर्म होता है, टोटल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है. क्या वापस उस ऐश को मैं अगरबत्ती बना सकती हूँ? नो, ठीक है. सो बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक. बर्निंग ऑफ पेपर, अगेन पेपर्स को जब बर्न करते हो ऐश बनाता है. टीयरिंग ऑफ पेपर मतलब फाड़ रहे हो तो वो केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि वो पेपर के फॉर्म में ही है. अब यहाँ पेपर को जला रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऐश में. सो बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, सारे फ्यूल्स जो हम बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, योर नेचुरल गैस, सीएनजी गैस, दे ऑल आर बीन chemical change because when they burn they result in the formation of gases. That gases are somewhat harmful, most of all harmful gases ही produce होते हैं. So total एक new property है, new substance है. So that is again उस gases को combine करके मैं fuel नहीं बना सकती. I can't convert that gases, combine the gases and convert them into fuel. So a total new product is formed. So that is known as a chemical change. So is it clear to you the difference between a physical change and a chemical change? So there are different types of chemical change, okay. So physical change के example, पेंसिल टूट रही है तो वापस वो पेंसिल ही है ना, शेप तो उसका स्टेट तो चेंज नहीं हुआ है. बटर, हाँ, अब मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, हॉट पैन नहीं, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, क्योंकि पैन अभी जल नहीं रहा है तो बटर को जब आप बाहर निकालोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और वापस उसको फ्रीजर में रख दोगे तो वो बटर बन जाएगा. बट उसको हॉट पैन में कन्वर्ट करोगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा. ये याद रखना, ठीक है. स्टेटमेंट्स अच्छे से याद रखना. नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज, अ न्यू प्रॉपर्टीज. वुड को जब बर्न कर रही हो तो ऐश मिल रहा है. फिर मेकिंग अ केक, दो बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स करके केक बना रही हो तो वापस केक से उस सब्सटेंस को बना सकती हूँ? नो, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया. एग से ऑमलेट बनाना, अगेन अ केमिकल चेंज, ओके. सो डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड अ फिजिकल चेंज. सी, no new substance is formed in a physical change, whereas in chemical change a new substance is formed. A physical change is a temporary change, whereas a chemical change is a permanent change, okay. A physical change is reversible, तो chemical change क्या होगा? Irreversible, okay. Very little heat or light is absorbed or given out during a physical change. बहुत कम heat या फिर absorb या release होती है during a chemical change, but it requires a lot of heat or it will release a lot of heat during a chemical change. The mass of a substance does not alter, that is change, in a chemical or in a physical change, whereas the mass of a substance does alter in a chemical change, ठीक है. chemical change में mass change हो सकता है. So the difference between a physical change and chemical change is clear to you. So as you can see over here,
एक ही चीज़ का हम फिजिकल चेंज भी देख सकते हैं, केमिकल चेंज भी देख सकते हैं। जैसे मेकिंग ऑफ डो बनाया आटे का और उससे रोटी बनाई। अब इस रोटी को, ये जो रोटी का जो बनाया है उसको मैं वापस आटे में कन्वर्ट कर सकती है, वापस उसको ऐसे ऐसे करके गोल कर दिया तो वो आटे में कन्वर्ट हो गया। बट उसकी अगर रोटी बन गई तो क्या वो रोटी से वापस आटा बनेगा? नो, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। दैट इज रोलिंग ऑफ रोटी इज अ physical change, but baking of roti is a chemical change. So I hope what is physical change, what is chemical change is clear to you. And next topic, that is in your next video lecture 7, we will study the separation of mixture techniques. Again it is a very important topic. ठीक है, तो अभी तक जितने भी किए हैं अच्छे से उनको रिवाइज करो. ओके, थैंक यू.